اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں کئی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور کئی جو ہے علماء جو ہے بتا رہے، سمجھا رہے اور پڑھ پڑھ کر سنا رہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پھر بھی جو ہے آج کے دور میں جو ہے انسان اور مسلمان یہ جو ہے اپنے ہی جو ہے باپ دادا یہ وہ کرتے آ رہے۔ اب دیکھو کافروں کو بھی دیکھو، مشرکوں کو بھی دیکھو کہ وہ لوگ کا کہنا یہی ہے، ہم ان سے کچھ بھی کہنے جاؤ تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں سے بھی کہنے جاؤ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن اتنے علماء جو ہے سمجھا رہے، بتا رہے، قرآن کی آیتیں سمجھا رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما ظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہے اگر تم اس حالت میں تمہاری موت ہو گئی، تم اس حالت میں گزر گئے، شرک کی حالت میں گزر گئے، مشرک کی حالت میں گزر گئے، یا جو شرک جو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ ہمارے جو ہے لوگ، ہمارے بھائی جو کیسا کرتے ہیں کہ درگاہ پہ جانا، باباؤں کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، ادھر جانا ادھر جانا، وہ ہمارے کو وہ دیا یہ دیا، وہ پیر کے پاس جانا، یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن کتنا علماء جو ہے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے یہ لوگ ان کے کاموں میں لگے ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 20 سے لے کے 24 تک اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے تم اتنے لوگوں کو جب تمہارے درگاہ کے پاس تمہیں جاؤ، ابھی دیکھو قرآن شریف آج کا ہے، کل کا ہے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے قرآن میں کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے اور ایسا بھی لوگ کریں گے، بدعت کام کریں گے اور دوسرے شرک کام کریں گے، ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کا جواب بھی لکھ دیے۔ یہ قیامت تک چلنے والی کتاب ہے، آخرت تک، قیامت تک یہ جو ہے قرآن جو ہے اس کے بارے میں پورا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہر چیز کے بارے میں قرآن میں لکھ دیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم درگاہ پہ گئے تو یہ ملا، ادھر بابا کے پاس گئے تو وہ ملا، ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا، ہمارا یہ کام چل گیا، ہمیں وہ کام کر لیے، تو جو ہے اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے جو ہے آپ کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو ہے کھانا کھلائے، سب اللہ تعالیٰ نے کھلائے نا، دوسرا کون کھلا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 20 سے لے کے 24 تک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين۔
अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला कहते हैं बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। ऐ लोगों, इबादत इख्तियार करो सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ उस परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया जो हमारे पहले बाप दादा थे जो गुजर गए। और इख्तियार करो अल्लाह ताला से जो है सही रास्ता, सही रास्ता इख्तियार करो, सही रास्ते पे चलो, अल्लाह ताला का फरमान। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं जमीन को हमने फरश और आसमान को हमने छत बनाया और बरसाया बादलों से पानी और बादलों में बिजली बनाई, बिजली बना के जो है पानी बरसाया। उसके बाद में तुम्हारे खेतों में फल फूल उगे, उसके बाद तुम उसी से खाते पीते हो। उसके बाद कौन उगा सकता है? अल्लाह के सिवा कौन है? अब देखो खेती के अंदर जो है अल्लाह ताला कहते हैं ना कि खेती में जो है हम पानी बरसाने के बाद ही तुम्हारे को अनाज मिलेगा, तुम्हारे को फल जो है मिलेगा। उसके बाद जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद भी अगर तुम इस किताब के ऊपर खयान करते हो, मतलब गलत सोचते हो इस किताब के ऊपर जो हमने तुम्हारे ऊपर उतारी है, तुम्हारे लिए उतारी है, जैसे कुरान जो है तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी है और दुनिया में हर इंसान के लिए ये किताब है कुरान शरीफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हारे को इसमें शक है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अगर तुम्हारे को इस किताब के ऊपर शक है, तुम शक करते हो, तो जो तुम जिसके ऊपर तुम हिमायती जो तुम्हारे हैं, जो कहते हो ना तुम के हमारे को ये देंगे, वो पीर दे दिया, वो बाबा दे दिया, वो दरगाह वाला दे दिया और वो दे दिया करके जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं बुला लो उनको, बुला लो उनको। अगर तुम सच्चे हो तो बुलाओ उनको और सच्चा जो है उनको जो है कहो कि इस कुरान का एक टुकड़ा बना के दिखाओ, एक टुकड़ा, एक आयत बना के दिखाओ, अल्लाह ताला कहते हैं। और तुम कयामत तक भी इस किताब को जो है, इस किताब का जो है एक टुकड़ा, एक आयत नहीं बना सकते, नहीं ला सकते। तो तुम समझ लो कि जहन्नम जो है तुम्हारे लिए हमने तैयार कर रखी है, जहन्नम हमने तैयार कर रखी है और इसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर है। और ये जहन्नम बहुत बुरी जगह है और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला का फरमान कुरान शरीफ में देखो, लोग कहते हैं कि हम जो है हर घर में कुरान है, हर घर में कुरान है, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से सही रास्ता मिलेगा। ये सब गलत रास्ता, इधर जाना उधर जाना, वो बोला ये बोला, उसके पास जाना इसके पास जाना, ये सब चीजें जो है गलत है, ये सब गलत है। इसको हम छोड़ देना चाहिए, हमें जो है सही रास्ता पकड़ना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान सुनते हैं हम। अभी हम ये सोचो, अगर हम जो है काम में सोचते हैं, हमारे बिजनेस में सोचते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं, जिंदगी के बारे में सोचते हैं, बिल्डिंग बनाना सोचते हैं, घर बनाना सोचते हैं, महल बनाना सोचते हैं, गाड़ी लेना सोचते हैं, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुरान उठाकर हम कभी ये सोचे कि हम जो रास्ते पे चल रहे वो रास्ता सही है या नहीं है, या वो पीर हमारे को देगा जो अल्लाह का ही फकीर है, अल्लाह को उसने खिलाया, उसको पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, उसको अल्लाह ने पैदा किया, वो हमारे को कैसे अच्छा करेगा? उसके इख्तियार में कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो इतने बड़े पैगंबर, अल्लाह ताला ने कहा आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई नहीं, इसके पहले जो आए थे उनसे बड़े पैगंबर, सबसे लास्ट आखिरी। और आज के दिन भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए तो पूरे पैगंबर को भी अगर वो आ गए तो उनके पीछे ही नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े पैगंबर जो है अल्लाह ताला ने कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला का कहना क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे बड़े पैगंबर, सबसे बड़े अजीम पैगंबर। तो जब अल्लाह ताला ने उनको जो है ये कल के बारे में, ये सिर्फ कल के बारे में, जैसे कल क्या होने वाला है, अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था, उनको तक मालूम नहीं था कि उन्होंने कब गुजरने वाले हैं, उनका टाइम कब आने वाला है, वो खुद नहीं जानते थे। इतने बार तो लोगों ने जो है लोगों से पूछते, फिर उसके बाद में जो है लोगों भी पूछते थे जब तुम इतने बड़े पैगंबर हो तो तुम्हारे को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, अब तुम कब तक जिएंगे, कब तक खाएंगे, कब तक रहेंगे करके सब पूछते थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि
इख्तियार में सब नहीं है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है सब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के जैसा, मैं भी एक बंदा हूं अल्लाह का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कहा तो फिर अजमेरी वाला बाबा है, ये जो बंदे नवाज है, ये है वो है, जैसे लोग बोलते हैं वो पीर साहब है, वो ये है वो है, तो इनको सब कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है? ये क्या माँ के पेट से पैदा होकर ऐसे ही आ गए? उनके पेट में जो है, माँ के पेट में जो है, अल्लाह ताला ने नहीं खिलाया? हमको जो है इस बातों को सोचना चाहिए। हम लोग जो है हर चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा दीन, ईमान और इस्लाम के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और कभी हम जो है इसके बारे में हम ख्याल करते नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमें ये बातें जो है कि कुरान और सही हदीस, सही रास्ता पकड़ना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। बस अल्लाह ताला जो है हमें हिदायत देवे, सही रास्ता दिखाए। हम जितने भी भटके हुए लोग हैं, मुसलमान हमारे भाई लोग, उन लोगों को अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे आवे, कुरान पढ़े। कुरान पढ़ो, सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया के अंदर, कुरान से अच्छी कोई चीज नहीं। देखते नहीं अमेरिका में, इधर उधर, चाइना में, हर जगह पे जो है कुरान कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते बराबर इस्लाम कबूल करते हैं। क्यों पढ़ते? उनको सब पता चल जाता है कुरान में अल्लाह ताला ने क्या क्या कहा है, और वैसा कुछ कोई लिख नहीं सकता उस किताब को, कोई बना नहीं सकता, ना आज तक बनाया है, उसका नुक्ता तक कोई नहीं बना सकता, कोई ना बनाया है और ना कयामत तक बना सकेगा। समझ में आया? तो अल्लाह ताला का फरमान है, हमें जो है अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत देवे, सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे चले। हमें भी जन्नत की आस करनी चाहिए, ना कि दोज़ख की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।